a class on higher intelligence, Agya Chakra Sadhana. So basically in this class, we will be talking about how can we make good decisions. Yes? Last time सबसे मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पे बोलूं, तो सबने कहा डिसीजन मेकिंग. But we have to understand कि डिसीजन मेकिंग जो है, it is a very very complex process and perfect decisions you can only make when your final chakra, the Agya chakra, gets awakened. But we will be talking lot of concepts. आज्ञा चक्र साधना लोग सालों तक करते हैं, तब जाके आज्ञा चक्र जो है अवेकन होता है. But I will be making it concise, I will be making it simple for you, but you have to be alert क्योंकि we will be talking lot of concepts which might totally boggle your mind. क्योंकि actually हमको mind जो है उसको destroy करना है. We have to understand. तो सबसे पहले let us talk what is the right decision. आज every moment of our life we are faced with choices. Yes or no? Every time we have choices. ये करूँ कि ये करूँ, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ. Every time we have choices and we are always confused. कभी regret करते हैं, ये क्यों नहीं किया मैंने? Why did I do this? Sometimes we choose very impulsively, right? So the question is, what is the right decision? Then we will talk about how to arrive there. What is the right decision? कौन बोलेगा? Yes? The right decision is one which is beneficial to everybody. What do you mean by everybody? The whole world? जरूरी नहीं है. Yes? It's beneficial to whom? Those who are affected by it. The right decision is one which is beneficial to all those who are affected by it. Do you think it is right? No. Because जब भी आप कोई decision लोगे, somebody will be negatively impacted and somebody will be positive. So, again, what is the right decision? What is right for you? The decision which is right for you, do you mean it is only right for you or anything else? जैसे आपने बोला एक decision लेते हो, will not be might be right for you, it may not be right for others. But when you say it is right for you, right? So when you say right for you, do you mean you alone or do you mean you along with your dear ones? You along with your dear ones. Okay. Do you think the right decision is good for your future? The right decision is good for my future. Yes? For this I want to correct. First thing, your right decision is only good for you in the now. And what is a right decision? A right decision is one which is holistically perfect for you in the moment. When we say it is perfect for you, it includes your environment also. It includes your environment. It doesn't mean only you. आज अगर वो डिसीजन आपके लिए अच्छा है पर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, उसको बर्बाद करता है, करेक्ट? इट इज नॉट अ राइट डिसीजन. द राइट डिसीजन इज वन विच इज होलिस्टिकली गुड फॉर यू इन द मोमेंट. सो व्हाट इज अ राइट डिसीजन? द राइट डिसीजन इज वन विच इज होलिस्टिकली गुड फॉर यू इन द मोमेंट. राइट डिसीजन में फ्यूचर नहीं आता है. राइट डिसीजन में क्या पास्ट आता है? It doesn't. Past comes only for the learning. Past comes only for the learning. So, holistically, if you want to define what is a right decision, a right decision is one in which you get the correct answer to your question, in which your past is also looked into, your future is also looked into, but fear of the past is not there. Fear of the future is not there, but it is a decision which is correct in the moment. Your past is very important to take the current decision. If you don't look at the past, you don't know whether you will like it or not, what will be your experience with it, how did you handle it. So many things of the past will come, but fear of the past will not come
एट द सेम टाइम राइट डिसीजन में आपका फ्यूचर भी आता है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, वेयर डू यू वांट टू गो इन योर लाइफ, बट उसका फियर नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग द राइट डिसीजन? आप राइट डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? One is you can't take a right decision because you have a fear of the future. You can say it's a fear of the failure. मैं गलत ना हो जाऊं, right? So one is it's a fear of the failure. Any other reason why you cannot take a right decision? आप क्यों confuse हो जाते हो? One is you are not confident कि मैं कोई decision लूँगा, whether I'll be able to follow through it. Yes? One is lack of confidence, fear of the future. Then what else? Not clear. We are not clear. You're not very clear. आपके अंदर clarity नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए. What should I be doing? Right? So clarity is not there. Have you ever noticed you are able to take a decision for others, but you are not able to take a decision for yourself? Yes? So अगर short में कहेंगे ना, you are not able to take a decision because you judge. क्योंकि आप judge करते हो. सबसे पहले खुद को पूछो, इज टेकिंग अ राइट डिसीजन डूइंग द बेस्ट डिसीजन, डूइंग द बेस्ट जजमेंट? पूछो खुद से, क्या राइट डिसीजन लेना मीन्स टेकिंग द राइट जजमेंट? दे आर सो अंडरस्टैंड कि दे आर डिफरेंट. जैसे हम कहते हैं व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन बिकॉज यू आर जजिंग. सपोज एक टिपिकल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपके सामने 4 खाने की चीजें रखी हुई हैं. एक रखा है रोटी सब्जी, एक रखा है चॉकलेट संडे, राइट, एक रखा है पकोड़े और एक रखा है सैलेड. रोटी सब्जी किसी ने खाना नहीं खाया तो सॉरी. रोटी सब्जी, राइट, रोटी सब्जी है, बढ़िया सा चॉकलेट संडे है, पकोड़े हैं और सैलेड है. नाउ आई आस्क यू टू टेक अ डिसीजन. कम ऑन, व्हाट डू यू वांट टू ईट? How will you choose? What do you want to eat? Salads. Salad. Do you think salad is the right answer? You will eat chocolate. Okay. आप अगर ये क्वेश्चन पूछोगे मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, how can you take a decision? सब कुछ नहीं, you can have anyone. जो मुझे उस समय इच्छा हो रही है. हाँ, एक ये पूछ लो कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है. शी आस्किंग कि मेरी क्या इच्छा हो रही है, मुझे क्या खाना चाहिए, राइट. अब जब आप अपने मन से पूछते हो, व्हेन यू आस्क योर मन, योर मन विल ऑलवेज से व्हाट यू लव. योर मन विल से चलना पकोड़े खा लेता हूं. करेक्ट. मन से पूछोगे आंसर करेक्ट नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? इफ यू आस्क योर मन, आंसर करेक्ट नहीं आएगा. इफ यू आस्क योर माइंड, mind will say salad, it might not necessarily be the right answer. So if you ask your body, the answer will not be right. If you ask your mind, answer will not be right. If you ask your senses, answer will not be right. इसके लिए सबसे पहले ask the right question. Ask the right question. What should I be eating now? At this time. क्योंकि वो now अगर lunch time है, तो you better eat your food, रोटी सब्जी. If it is a snack time, better you can eat pakoda, no problem. It depends on what should I eat now. When you ask what should I eat now, the question will come, what is my priority? The priority should be correct. Lunch time में the priority is to eat food so that पेट भरा हो and you can do the rest of the day properly. You can work. If it is a snack time, you want something to pep you up. You don't necessarily feel hungry. You just want some extra energy. उस समय you can have a sundae or you can have a salad. So it depends on what question you are asking. सबसे पहले जब भी आपको decision लेना है, you have to ask the right question. Most of the time you don't ask the right question. Now let us take another typical decision. You've got a job offer. एक आपको बॉम्बे में मिला है, एक आपको नेबरिंग पुणे में मिला है, एक आपको गुजरात में मिला है. यस, बॉम्बे वाला जो है उसकी जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल आपका एक्सपैंड नहीं होगा, ज़्यादा मतलब बिल्कुल रूटीन टाइप का काम है और सैलरी इज एवरेज.
जो गुजरात वाला है उसकी सैलरी बड़ी हाई है, बट गुजरात। जो पूना वाला है उसका लर्निंग बहुत है, छोटी सी कंपनी है, पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। How will you choose what is the right thing for you? How will you choose? How will you choose आपके लिए इनमें से कौन सा डिसीजन करेक्ट है? क्योंकि जो भी डिसीजन लोगे, गलती जो आप करते हो ना, you ask people around you. Because your wife will say नहीं नहीं दूर मत जाना, करेक्ट? वाइफ कहेगा नहीं नहीं आसपास ही रहना, जल्दी जल्दी वापस आ जाना, बॉम्बे में ही काम करो। पेरेंट्स पूछेंगे, डेफिनेटली वो कहेंगे बेटा बॉम्बे में काम करो। बच्चे कहेंगे पापा इतना अच्छा ऑफर है, स्टार्टअप है, गो टू पूना। मन कहेगा लेट मी गो टू गुजरात। सो बिकॉज यू आर आस्किंग द वर्ल्ड एंड यू आर जजिंग, यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। तो इसके लिए सबसे पहले आस्क द करेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज नॉट which offer should I take? The question is not which offer should I take? What is my need at this moment? Do you think the question should be what is my need at this moment? Do you think so? Or what is my priority at this moment? एक तो this is a good question, that what is my priority at this moment? Because if you are a young person, yes, if you are a young person wants to evolve your knowledge, etc., then it is better to go to a place जहाँ आपका सबसे ज़्यादा potential use होगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा growth opportunity हो। And एक ये होगा कि no, you have already served in high positions for many years of your life, and today your priority is your family, but पैसा आता है बस, तो then you will choose a place in Bombay. तो सबसे पहले ask yourself the question, why do I want a job? The question should be, why do I want a job? And first we should understand, wanting a job has got only one true meaning throughout our lives. It has only one meaning. A job, why do we take a job? To earn money. Why do we take a job? सबसे पहले to earn money totally incorrect. If you align job with earning money, you will end up not earning money. You will end up having pleasure and pain with money. क्योंकि job is never done to earn money. Money always is the last priority. A job is always done to utilize your talents to live your being. आज अगर earning money करते, can you do any job in the world just because it gives you money? Can you survive in such a job? No, you'll be depressed. You have to take a job which helps you utilize your complete talents. तो सबसे पहले you have to define the job that it should be the one which should utilize my talents. उसके बाद you should say, after this, what is my priority? Is it to really learn a lot? Is to expand my knowledge, expand my power, expand my potential, or it is to be close to my family? What is my priority? तो पहली प्रायोरिटी करेक्ट डिफाइन करो, अदरवाइज यू विल एंड अप इन अ जॉब वेयर यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, व्हिच विल नॉट बी हैप्पी। क्लियर? तो प्रायोरिटी शुड बी करेक्टली डिफाइंड। नाउ व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग द करेक्ट डिसीजन? यस, Fear. yes, what we have talked is fear, fear of failure, fear of the future. What stops you from taking the correct decision is judgment, because of constantly judge करते हो, you're constantly judging. When you judge the 4 types of food, will you say salad नीचे है, खाना ऊपर है? Do you judge or do you just see? When you stop judging, you start seeing. When you stop judging, you start seeing. We have to understand, judging कौन करता है? We know we are made up of 4 consciousness. Yes? Mind, body, soul and senses. Judgment कौन करता है और seeing कौन करता है? Who judges? ये कम है, ये ज़्यादा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, this is exciting, this is boring. The mind, the body and the senses, तीनों जज करते हैं। आज आप क्यों चारों में से खाना नहीं ढूंढ पाते हो? You can't choose what to eat. बॉडी कहती है मुझे भूख लग रही है,
सेंसेस कहते हैं ये टेस्टी है, माइंड कहता है ईट हेल्दी फूड. Yes, why you have so many voices in your mind? Because everybody is shouting. Body कुछ कह रही है, माइंड कुछ कह रहा है, सेंसेस कुछ कह रही है. जब आप जॉब के लिए भी चाहते हो, आपकी बॉडी कहती है स्टेबिलिटी, ऐसा जॉब ढूंढ कि तेरे को कोई निकालेगा नहीं. सर्च अ जॉब which will be stable. जिंदगी भर you can do that job. Your mind will tell you search a job जिसमें पोजीशन तेरे को हाई मिलेगी, हाई पोजीशन, पावर मिलेगा. सेंसेस कहेगी आई वांट अ जॉब व्हिच इज थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, थोड़ा मैं आलस कर सकूं, थोड़ा रिलैक्स कर सकूं, थोड़ा एंजॉय कर सकूं. दैट इज व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज योर माइंड, बॉडी एंड सेंसेस तीनों जज करते हैं. ये तीनों की तीनों जज करते हैं. और जो आपका सोल है, आपके जो अंदर सबसे सटल बीइंग है, आत्मा, इट ओनली सीज. क्योंकि आत्मा को जज करने की जरूरत ही नहीं है. व्हाई? Because your Atma is connected to everybody. It is connected to everything. When you are connected to everything, do you have to judge? Something like, आज आप पूरे शरीर से connected हो. Yes or no? आज आपके हाथ में खुजली मचती है. Do you judge? खुजली क्यों मची? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? किसने कुछ किया? कि ऐसे कर लेते बस. You don't judge, no? Because you can see. आज जो चीज आपके शरीर का भाग है, डू यू जज? नो, यू जस्ट सी. यस और नो? और जो भी पर्सन आपके क्लोज है, एनी पर्सन हु इज क्लोज टू यू, मे बी योर चाइल्ड, विल यू जज? बच्चा कहेगा पापा आज मेरे लिए टॉय लाना, डू यू जज? क्यों मांगा इसने? व्हाट वाज हिज इंटेंशन? व्हाई डिड ही आस्क? आज इसके मन में क्या है? क्यों कर रहा है ऐसे? व्हाई इज ही ग्रीडी? विल यू आस्क? नो. बच्चे ने टॉय मांगा, लाओ या नहीं लाओ, इट्स योर चॉइस. जिसको भी लव करते हो उसको जज नहीं करते हो. इन अदर वे यू कैन से, जिसको अपना समझते हो उसको जज नहीं करते हैं. यू विल नेवर जज पीपल यू लव. यू विल नेवर जज द इंटेंशंस ऑफ पीपल यू लव. बट जिसको लव नहीं करते हो, जज. ऐसा क्यों बोला, वह क्यों बोला, इसका क्या इंटेंशन है, पीछे क्या है, आप क्या करेगा, वो क्या करेगा. तो जो जजमेंट होती है इज बिकॉज ऑफ सेपरेशन. Is because of separation. We think he is different, I am different. इसका फायदा अलग है, मेरा फायदा अलग है. इसकी खुशी अलग है, मेरी खुशी अलग है. Judgment only happens because of separation. And आज्ञा चक्रा is the चक्रा जहाँ सारे egos reside करते हैं. और आज्ञा चक्रा को totally open करने के लिए you have to destroy all the egos. And it is not easy. ये जो ईगोज हैं, दे मैनिफेस्ट इन द मूलाधार चक्र, दे मैनिफेस्ट इन द स्वादिष्टान चक्र, दे मैनिफेस्ट इन द मणिपुर चक्र. इतने सारे ईगोज हैं कि आपको हर लेवल पे ईगोज को डिस्ट्रॉय करना. और डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? हाउ डू यू डिस्ट्रॉय द ईगोज? ओनली थ्रू ज्ञान. तभी आज्ञा बोलते हैं, पर एक्चुअली वो अज्ञान चक्र. ये जो आज्ञा चक्र है ना, इट इज एक्चुअली एन अज्ञान चक्र. ये चक्र खुलता ही नहीं है जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा. यू नीड टू हैव द ब्रह्म ज्ञान टू ओपन दिस चक्र. बट अंडरस्टैंड, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ओपन दिस चक्र इन दिस लाइफ टाइम. यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू नॉलेज, ओपन टू अंडरस्टैंडिंग, ओपन टू गेटिंग द नॉलेज व्हाट यू आर रिसीविंग. द नॉलेज इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज चैप्टर्स. But it is not million chapters. It might be 100 chapters. Are you ready to learn the 100 chapters? Are you ready to learn? You know what you are getting in this one. अब आप समझो, what stops you from taking a decision is judgment. Today, because of judgment, आपका जो चित्त है, what is चित्त? What is चित्त? Chit is your consciousness. And what is consciousness? What is consciousness? Is consciousness Atma? What is consciousness? Your energy? Anything else? What is consciousness? It's your thoughts. Your chit is you. आपका जो चित्त है ना, it is you. आज आपका जो चित्त है, it's like a lake of impressions, lake of thoughts.
lake of everything that we have learned in this birth and all the previous births. That is your चित्त. आज आपके चित्त में बहुत सारी रित्तियां हैं. What do you mean by रित्तियां? रित्तियां means there are many impressions in the lake of the चित्त. What do you mean by impressions? आज every person, जब भी you have a situation in front of you, whenever there is an incident in front of you, you define the incident. अच्छा लगा क्या? अच्छा है क्या? बुरा है क्या? मेरे फेवर में है क्या? Every time you are defining situations. Those definitions they form rittis in your चित्त. और ये जो rittis हैं, these rittis cause coloring in your thoughts. And because of the coloring in your thoughts, you keep on attracting different things in life and they cloud your decision process. अब ये जो रित्तीज हैं, ये रित्तीज जो होती हैं, you can imagine that they are impressions, memories that you remember, but they have definitions. To give you a simple example, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, right? Till you are this particular age of 20, 25, 40, आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें हुई हैं. Do you remember everything? No. वो कहाँ है? They are a part of the चित्त. आपको याद भी नहीं है. They are a part of the चित्त. कुछ चीजें हैं आप जब भी याद करते हो, आपको या तो रोना आ जाता है, या बहुत हंसते हो, या बड़े खुशी होते हो, या बड़े एक्साइटेड होते हो. कुछ चीजें हैं जो आपको याद आती है बचपन की, टीचर ने आपको इंसल्ट किया था, फादर ने आपको हक करके लव किया था, यू गॉट एन अवार्ड, यस और नो. सो देयर आर मेनी इंप्रेशंस जो आप जब भी याद करते हो आपको रोना आता है, या आप जोर से हंसते हो, या आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हो कि यार वो क्या समय था जब मैं इसके साथ था. यू रिमेंबर दोज वंडरफुल मोमेंट्स एंड यू गो इन अ ड्रीम स्टेट. यस, दोज आर द रित्तीज. वो रित्तीज है. और रित्तीज में 5 तरह के क्लेश होते हैं. These are called क्लेश. क्लेश means they are warring. They are all the time coming in your mind and disturbing you. ये जो क्लेश होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं. एक होता है डर, फियर. एक होता है अटैचमेंट, what you love. एक होता है एवर्जन, what you hate. One is out of your ego. मेरे को, मुझे पसंद है, मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, हम लोग अलग हैं, हम लोग ऐसे हैं. Anything related to your ego. And 5th is ignorance, जो आपको पता ही नहीं है. जैसे आपने अभी बताया, your definition was wrong. You defined job for money. Wrong definition. You will never get a job for money. You will get a job only for your talents. तो ये 5 टाइप की जो वृत्तियां होती हैं, ये जो 5 टाइप के जो क्लेश हैं, ये आपकी रित्ती को कलर करते हैं. तो ये जो रित्ती है आपकी क्लिष्ट हो जाती है, क्लिष्ट. But there are some kinds of ritti which really don't disturb you. Something like you got an award. You have the memory of the award. आपको एक प्राइज मिला. Yes? You have the memory of that award, but it doesn't disturb you. Yes? Then it is a ritti which is aclished, which has got no color. Clear about that? अब आपको क्या करना पड़ता है to reach that level of awakening the Agya Chakra? You have to do चित्त रित्ति निरोधः. योग चित्त रित्ति निरोधः. आपको ये जितनी भी रित्तियां हैं, you have to destroy them. You have to uncolor them. Why you have to uncolor them? Because these are all illusions. अब एक एक को पूछो, जो चीज आपको कहते हो कि मुझे डर लगता है, is it really fearful? Yes? आप जब कहते हो कि मुझे इस चीज से डर लगता है, is it really fearful? Yes? आप जब छोटे थे, आपको डर लगता था कि कोई आपको मुक्का मार दे. Right? You used to be scared of big people. कोई आके आपको मार नहीं देगा. You were scared. Till today, you find that when you talk to people, there is a kind of fear comes. जब भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट बड़ी होती है, आप कहते भैया शांत हो जाओ. ओके ओके, आप निकल जाते. It's called a fear of confrontation. Yes? अब ये जो fear है, it's a ritti. जब तक आपके मन में fear होगा, it will keep on coming in front of you. It will keep on coming in front of you because it is your fear. वो आता ही रहेगा.
You will be surprised. Why do I attract people जो बार बार मुझे लगता है मुक्का ही मार रहे हैं मुझे? Because it is your वृत्ति. How will you remove it? कैसे हटाएंगे हम? कैसे हटाएंगे उस डर को? Face the person. Yes, face it. उसको देखो. ये डर मेरे कब से है? Oh, I have that fear since my childhood because I saw big people bullying. I have that fear since childhood. उस fear को देखो, face करो, और एक दो बार किसी को मुक्का मारी दो. Attachment. Do you think it is right to be attached to anything? And is it a truth? Is it a reality? बचपन में you loved your toys, you loved your aeroplane, you loved your car, you loved your dolls. Yes, इतना आप लव करते थे कि कोई छूता भी था तो आप फाइट करते थे. Today you just don't care for it. आप ही ने भंगार में दिया सब कुछ. So do you think it is right to be attached to anything? Yes, because attachment is again your own personal definition. Today if you are attached to something, tomorrow you might hate the same thing, or you might dislike it, or you might not care about it. तो योग में आपके जितने भी attachments हैं उनको देखकर destroy करना. Every single attachment. Every single attachment. क्योंकि आज अगर आपको attachment है, can you take a right decision? Today for you going to Pune is the right thing. You know यहाँ मेरा सबसे ज़्यादा potential होगा, सबसे ज़्यादा I will be learning, salary भी ठीक है, and I will grow in this company because I am attached to my child, I am attached to my wife. I cannot go to. तो आई एम श्योर काफी लोग रियलाइज करेंगे ऐसे ही डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है. अगर ये सब करना है तो then taking a right decision is very difficult. But these are all the factors which are important. You have to understand why you are able to take a correct decision for another person. You are able to lecture everybody. कोई भी person problem के साथ आता है, you are able to give him a good solution because you are not present in that. ना आपका डर है, ना आपका attachment है, ना आपका aversion है, और ना आपका ego है, और ना आपका ignorance. Is it clear? To take a सही, भाई आपने choose की थी ये class. To take a सही decision, you have to remove the fear. Fear को हटाने के लिए क्या है? उसको देखो और एक बार face ही करो. या अपने चक्र योग meditation से release करो. अटैचमेंट को देखो और उसको रिलीज करो. डू यू थिंक रिलीजिंग अटैचमेंट इज रिलीजिंग लव? किसको लगता है? कि मुझे पता है, मैंने एक बार चक्र योग में क्लास में आई टोल्ड पीपल आर यू रेडी टू रिलीज अटैचमेंट एंड आई विल डू अ मेडिटेशन. पीपल गॉट सो स्कैर्ड कि आई हैड टू कैंसिल दैट मेडिटेशन. पीपल फेल्ट नो मैम, आई लव माय चाइल्ड, आई डोंट वांट टू रिलीज अटैचमेंट टू. क्योंकि जब तक अटैचमेंट होगा आप सही नजर से सही डिसीजन नहीं ले सकते. इफ यू हैव अटैचमेंट यू कांट टेक अ डिसीजन फॉर योर चाइल्ड आल्सो. शुड ही स्टडी हियर, शुड ही स्टडी हियर, शुड ही डू दिस, शुड ही नॉट डू दिस, शुड ही गेट अ पनिशमेंट और शुड ही नॉट गेट अ पनिशमेंट. टुडे यू कैन नॉट टेक राइट डिसीजन इवन फॉर योर फैमिली, योर चाइल्ड, इवन फॉर योर जॉब. सपोज यू आर अटैच्ड टू योर जॉब, कैन यू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर जॉब? नो. आपको लगेगा नहीं बॉस मुझे लव करता है, कलीग्स मुझे लव करते हैं, बट टाइम फॉर यू टू गो. आपका समय है, जाओ, आगे बढ़ो, फ्लाई योर विंग्स, बट यू कांट बिकॉज यू आर अटैच्ड. सो वन इज यू हैव टू रिमूव अटैचमेंट. अटैचमेंट कैसे है? हाउ टू रिमूव द अटैचमेंट? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोह. मोह. कैसे हटाएं अटैचमेंट? उसके लिए एक अलग क्लास करेंगे. बट द थिंग इज अटैचमेंट के लिए यू हैव टू लुक एट द अटैचमेंट एंड रियलाइज इज इट ट्रू, इज इट सच? जस्ट बिकॉज ही इज माई चाइल्ड आई हैव अटैचमेंट. व्हाट अबाउट दिस चाइल्ड? जस्ट बिकॉज शी इज माई मदर एंड शी गिव्स समथिंग टू मी, व्हाई नॉट दिस मदर? व्हाई दिस हस्बैंड? व्हाई दिस पर्सन? व्हाई नॉट द वर्ल्ड? जस्ट बिकॉज ही लव्स मी, आई लव हिम, देयर इज अटैचमेंट. व्हाट अबाउट माई लव फॉर द होल वर्ल्ड? व्हाट अबाउट अदर जॉब? Today I love this job, today I love this boss. What about other company where I will again love some other boss, some other person? Why do I want to limit myself? Because ये चक्रा जो है, it makes you unlimited.
It makes you unlimited. So you have to look at the attachment and release it. Removing attachment doesn't remove love, but it removes that मोह. जो अंदर से मोह है कि उसके साथ कुछ भी होता है आप तड़प पड़ते हो, कुछ भी होता है इसके साथ अच्छा बहुत खुश होते हो, बुरा तड़प जाते हो, दोनों हट जाएंगे, तड़प भी हटेगी और खुशी भी हटेगी. But at least you will become balanced. You will know what is the right thing to do with that person, for that person, with yourself. You will know the right thing. ये जो spiritual journey होती है, it's a tough journey. It's a tough journey. जो spiritual journey होती है, it takes you towards the ultimate truth. जो actual सच्चाई है, वो वहाँ ले जाता है. Are you ready? सबसे पहले खुद से पूछो, Are you ready? Or you want to only make the right decisions because you want to get a big success in your career or your job, etc. It's not possible कि मैं केवल करियर में अच्छा हूँ, बाकी सब में मैं attached हूँ. Not possible. You have to remove attachment with everything to take the right decision. The decision could be anything. You should be not seeing your family for 1 year, but ultimately everybody will adjust to it. And ultimately जब आपकी growth होगी, जब financial भी आपके पास आएगा, when everything goes right, you will see everything in the back also will go right. Your children will develop strong, independent, even though you are not there. जरूरी नहीं है आपके होने से बच्चे अच्छे होते हैं. Not necessary. Maybe when you go away, they will become more independent and more self-obedient. It's possible. Everybody is clear about attachment. Third is aversion. Aversion means hatred. Do you think there is anything like hatred? Do you think there is anything, I hate this, I hate this? Often people have found in their life, जिसको उन्होंने hate किया उसके साथ ही रहे, या जिस चीज को hate किया वो तो जरूर सामने आई है जिंदगी में. हमेशा कहा मुझे बैगन नहीं खाना, बैगन ही मिलेगा. Is there anything called hatred? सबसे पहले you have to destroy every single perception of anything being called hatred. There is actually nothing called hatred. Yes or no? Because actually we can't dislike anything in this world. दुनिया में कोई भी चीज को हम dislike नहीं कर सकते. ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. You can say yes, it is not aligned to life. Suppose you see somebody doing illegal things or immoral things or unlawful things, you can't hate him. But you can say that yes, he is on this path, I am on this path. तो जो भी चीज से आप hate करते हो, क्योंकि आज आपका जॉब में जाना, suppose you choose कि yes, I am going to this company जो पूना में है, but it is run by Britishers. But I don't like Britishers. But it is a company where you have to go, and maybe this is where all your potential will be utilized. So you can't say that I don't want to go to a British company. You can't hate anything. Because जो भी चीज को hate करोगे, वो बार बार आपके पास आएगी. जिस चीज से hate करोगे, वो लाइफ में जरूर आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा. सामने आके खड़ा हो जाएगा, hate करके दिखा. क्योंकि जो मैं हूँ, वो तू नहीं. You have to understand, in this world, Agya Chakra means not 2 eyes, 1 eye. You have to see everything with a saman darshi. जो आप हो, दुनिया वही है. Whatever you are, world is like that. You hate, they also hate. आज आप किसी को गुस्से से देखोगे, वो भी गुस्से वाला हो जाएगा. किसी को प्यार से देखोगे, वो भी प्यार वाला हो जाएगा. जितने जितने आप निर्मल होते जाओगे, उतना सामने वाला निर्मल होता जाएगा. Yes or no? तो सामने वाला जो शीशे में है, वो आप ही. आज्ञा चक्र आपको बताता है, सामने कोई भी नहीं है, आप. It shows you your शीशा. तभी लोग शनि साढ़े साथी से बहुत डरते हैं, क्योंकि खुद ही सामने आ जाते हैं. ये जब मैं आज्ञा चक्र के लेसन सीख रही थी, तब मैंने एक पोयम लिखी थी, सुनाती हूँ आपको. खुद को कभी न देख पाई, तुझे ही आईना समझा, तेरे फूलों और कांटों से ही मैंने अपना जीवन सजाया. Today we can't see ourselves. Yes or no? Actually we can't see ourselves. तो हमारा वर्ल्ड ही हमारे लिए मिरर होता है. वर्ल्ड कहते हैं you are beautiful, we think I am beautiful. World says you are bad looking, oh I am bad looking. World says you are fat, oh I am fat. So
Whatever the world tells you, तुम उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को बनाते हो, क्योंकि हम में से कोई भी अपने आप को देख नहीं सकता. How do you know कि जो लोगों ने मिरर इन्वेंट किया वो सही है? मैं मिरर में किसी को देख रही हूँ, हो सकता है you are seeing somebody else. Yes or no? Because mirror is a creation of man only. खुद को कभी न देख पाई, तुझे ही आईना समझा, तेरे फूलों और कांटों से ही मैंने अपना जीवन सजाया. शब्द रस गंध स्पर्श को महसूस किया तुझ में, अपने संसार को बाहर देखा, स्वयं को भोगी बनाया. क्योंकि वर्ल्ड से ही मुझे टेस्ट समझ आया. जब खाना आया तो मुझे समझ आया कि उसका स्पर्श क्या है, उसका गंध क्या है, उसका रस क्या है. काम क्रोध मद मोह लोभ तुझसे ही तो हुआ मुझे, तुझे छोड़ जब स्वयं को देखा, सच्चित पर अकेलापन पाया. मैंने सब छोड़ दिया, काम भी छोड़ा सबसे, क्रोध भी छोड़ा, मद भी छोड़ा, मोह भी छोड़ा, लोभ भी छोड़ा. पर जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैंने देखा मेरे में सत्व और चित आ गया और मैं बहुत अकेली हो गई. फिर माया की अटकेली देखी, आई सॉ द नॉटीनेस ऑफ द वर्ल्ड. कैसा खेल खेला उसने, अहम के निर्माण के लिए खुद को खुद से अलग कराया. सामने आईने में तो मैं थी, प्यार नफरत भी स्वयं से था, खुद को जब खुद से मिलाया, स्वयं को ही खुदा पाया. So understand that Agya Chakra is the one which makes you have only one eye. जो आप सामने से हो वही आप पीछे से. पीछे का चक्रा is what you get from the world और सामने का चक्रा is what you give to the world. You have to balance both. आज स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्वयं को तो अच्छा कर देते हैं. मैं रिलीज करता हूँ ऑल नेगेटिविटी, आई ट्रस्ट, आई लव, आई एम गुड. व्हाट अबाउट द वर्ल्ड? वर्ल्ड को भी उतना ही प्यूरिफाई करो. We will be doing a meditation on this, okay, after some time. So what we discussed was fear, attachment, aversion, and fourth is ego. What is ego? Ego क्या है? Yes? I-ness. Ego is the I-ness. What else is ego? A sense of self, right? A sense of self. Ego means what separates you from others. Ego is anything that separates you from others. मेरा माइंड उसका माइंड, मेरा जॉब इसका जॉब, मेरी वाइफ इसकी वाइफ, मेरी पसंद इसकी पसंद. ईगो को हमें देखकर सेपरेट करना पड़ता है. बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड. आज अगर ध्यान से देखो तो आपके अंदर यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड हेट्रेड फॉर द अदर पर्सन. रियलाइज करो आपके मन में दूसरे के लिए बहुत नेगेटिविटी और हेट्रेड है. ध्यान से उसको ऊपर लेके आओ. व्हेन यू रियलाइज कि यस मुझे बहुत खराब लगता है लोग ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई दे आर लाइक दिस, व्हाई दे बिहेव लाइक दिस, व्हाई दे डू ड्रेस अप लाइक दिस, व्हाई डू दे थिंक्स लाइक दिस. जब आप रियलाइज करोगे ना, आप रियलाइज करोगे आपके अंदर एक एक्चुअली बड़ा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है. व्हाई डिड दे डू दिस, क्यों करते हैं लोग ऐसा. अगर आप रियलाइज करोगे आपको अंदर से बहुत एंगर नजर आएगा. एंगर, वो जो एंगर है दैट इज द ईगो. और जब आप ईगो को देखोगे यू हैव टू लुक एट इट एंड यू हैव टू रिलीज इट. इट्स माय डेफिनेशन. ये मैंने डिफाइन किया है. ये बड़ा, ये छोटा, ये खराब, ये अच्छा, ये ऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट. बिकॉज अंडरस्टैंड करो इस वर्ड में, इज देयर समथिंग बिग एंड इज देयर समथिंग स्मॉल. यस, कोई भी चीज जिंदगी में बड़ी होती है या छोटी होती है. यस और नो? मुझे बताओ बड़ा क्या है. व्हाट इज बड़ा? बड़ा क्या है? देयर इज नो नथिंग कॉल्ड बड़ा. व्हाट इज समथिंग कॉल्ड टॉल? व्हाट इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट? क्योंकि आप बोलोगे ये बड़ी शॉर्ट है. यू विल टेल वन गर्ल शी इज शॉर्ट. तो कहेगी क्या शॉर्ट है? नो शी इज शॉर्ट. विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट? क्योंकि आपके हिसाब से 5 फीट शॉर्ट है, किसी और के हिसाब से 4.5 फीट शॉर्ट है, और एक पर्सन है जो 1.5 फीट का है. सो देयर इज नो लिमिट टू शॉर्टनेस. आज वो 1.5 फीट का है, कल एक 1 फीट का बंदा भी आ जाएगा. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड टॉल. इज देयर एनीथिंग कॉल्ड बिग? बिकॉज बिग कैन बिकम बिगर. इज देयर एनीथिंग कॉल्ड स्मॉल? नो, स्मॉल कैन बिकम स्मॉलर. इज देयर एनीथिंग कॉल्ड गुड? कैन यू से शी इज अ गुड गर्ल? Good can become bad. Can you say this
person is honest? Can you say this person is honest? No. Honest can become dishonest. Can you say time? क्या आप समय बोल सकते हो समय? No. Because यहाँ जो समय है अमेरिका में अलग समय. Can you say position? Can you say position? No. आज जो आपकी पोजीशन है किसी और के हिसाब से अलग है. Earth is round. You can only give anything with reference to something. I am in Nilkant building which is near this, which is near this. Everything is with a reference. आज दुनिया में there is no tall, short, long, honest, dishonest. कुछ भी नहीं है. There is no adjective in this world. There is nothing called beautiful also. क्योंकि आपको कोई beautiful लगता है दूसरा कहता है क्या beautiful है? What do you find beautiful in this? ये beautiful है. क्या हम लोग सब किसी भी चीज के लिए एग्री कर सकते हैं? We can't. Because सबका पर्सपेक्टिव अलग है. सबका. Everyone has got a different perspective. For example, जैसे मनी का, पैसे का. हर पर्सन का पैसे का अलग पर्सपेक्टिव है और जैसा आपका पर्सपेक्टिव है आपकी वर्ल्ड हुई है. Suppose when you were growing up, you saw a lot of struggles in your life. तो आपको हमेशा लगा पैसा कमाना इजी नहीं है, इजी नहीं. It was your perspective. अब आप बड़े हो गए हो, still you are finding that you are struggling because पैसा कमाना easy नहीं है. और फिर आप देखते हो इसको कितना आसानी से कैसे मिल जाता है पैसा. How is getting so easily? उसका पर्सपेक्टिव है पैसा कमाना बहुत इजी है पर रिश्ते कमाना डिफिकल्ट है. किसी और के लिए पैसा तो मिल जाता है पर रिश्ता इज डिफिकल्ट. उसको रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है. आज जो आपने पैसे को डिफाइन किया है आपकी जिंदगी में पैसा वही है, वही है. पर कैन एनीबडी टेल मी द वैल्यू ऑफ मनी? आप मुझे बताओ 10 रुपए की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है 10 रुपए की? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ ब्लेसिंग. आज हमें लगेगा 10 रुपए कुछ भी नहीं है पर एक्चुअली आप सोचो कि कहीं पर आप गए और आपका वॉलेट खो गया एंड यू आर स्ट्रैंडेड. आपको लगेगा भगवान मुझे कोई 10 रुपए दे दे कि मैं टिकट लेके बस में चढ़ सकूं. वो 10 रुपए बिकम्स ह्यूज फॉर यू. यस और नो? सेम थिंग. व्हाट अबाउट 5 लाख रुपीस? 5 लाख रुपीस की क्या वैल्यू है? हाउ मच इज 5 lakhs? Yes? You cannot purchase a flat. Yes, but what you have to understand, right? तो 5 lakhs अगर फ्लैट देखोगे तो 5 लाख पीनट है, right? And suppose आप एक डॉक्टर के पास गए, you went to a doctor और डॉक्टर के पास गए और आपने 500 रुपए दिए. तो आपने कहा देखो छोटा सा मेरे दांत में दर्द हो रहा था इसे 500 रुपए केवल देखने के लिए दिए. और वही डॉक्टर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान प्लीज पहले पूरी मेरी सद पूरी ले लो जायदाद, मुझे बचा लो. तब आपको 5 लाख भी लगेगा कि गॉड प्लीज प्लीज ले लो, थैंक यू थैंक यू. 500 रुपए में आप पकड़ रहे थे और या 5 लाख रुपए की भीख मांग रहे थे. यस और नो? वही डॉक्टर सिचुएशन बदली, 500 और 5 लाख बराबर हो गए. आज आप भेलपुरी वाले के साथ बार्गेन करोगे कितने की भेलपुरी है? 10 रुपए की. क्या 10 रुपए की? वहां तो 5 रुपए की है वो. और 5 स्टार होटल में बैठे भेलपुरी खाई 150 रुपए का, 150 रुपीज, 200 रुपीज भेलपुरी खाई. And that also यार very good है. और वहाँ टिप भी देकर आए 50 रुपए का एम्बियंस के हिसाब से. It's all about the ambience. It's all about the situation. So understand कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है. आज why? Suppose there are people who come to me. They say कि I am working as a real estate broker. कहते मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करने वाला हूँ. मेरे को कुछ डील्स बड़ी आराम से मिल जाती है और जो अच्छी अच्छी डील्स है जो मुझे पता है कि मैं काम करके ऐश आराम करूंगा वो डील होती है. एंड टाइम में पीपल डोंट टेक फ्रॉम मी. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वैल्यू. क्योंकि उसको जब पता है कि यार ये घर किराए पे दूंगा तो मुझे 20,000 रुपए कमीशन मिलेगा, इसको दूंगा तो मुझे 40,000 कमीशन मिलेगा. पर जैसे ही वो एक घर की बात करते हैं जिसमें एक घर में 15 लाख रुपए कमीशन मिलेगा, 15 लाख easy, not easy. So what they do? They struggle. They do 20, 30, तब जाके struggle करके एक 15 लाख मिलता है. एक. That's a struggle. Because to earn 15 lakh is not easy. So understand करो. And another example is that there is a person वो कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बहुत सारे टाइप के इक्विपमेंट्स हैं.
I've got all types of TVs, all types of equipments, but I'm able to sell the सस्ता वाले. तो बिल्कुल सस्ते टीवी है ना, 8-9 हज़ार वाले, वो तो बिक जाते हैं. और जब मैं बड़े हाई एंड टीवीज बेचना चाहता हूँ, मेरे पास वो भी है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, मुझे वैसे बायर ही नहीं आता. Because for you, the सस्ता वाला is value for money. Is there anything called value for money? Do you understand? Is there anything called value for money? आज वो बिलीव करता है कि ये जो सस्ते वाले हैं, जितने भी सस्ते आइटम्स हैं, दे आर गुड, दे आर वैल्यू फॉर मनी. तुमको टीवी तो देखना है, देखोगे 8-9 हज़ार में तुम टीवी देख सकते हो, 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करोगे? इससे अच्छा है उसको बैंक में डालो. दैट इज हिज वैल्यू फॉर मनी. इट इज योर परसेप्शन, नॉट द कस्टमर्स. आज अगर एक अच्छा कस्टमर आएगा, उसके लिए वैल्यू फॉर मनी इज समथिंग दैट बिफिट्स हिम. इट बिफिट्स हिम. ही फील्स यस आई एम वर्थ दैट 1.5 लाख रुपए. अगर मेरे घर में टीवी होगा तो इससे कम तो हो नहीं सकता. फॉर हिम दैट इज वैल्यू फॉर मनी. आज आप अपना परसेप्शन दूसरे पे थोप रहे हो, वही आ रहा है. तभी you are attracting the same kind of customers that you are. You are attracting the same kind of job opportunities that you are. You are attracting the same kind of person for marriage what you are. This is the law of attraction. Of course, this is the law of attraction. आप externally कितना भी बोलो, I want a big house, I want this, I want that, but अंदर से what you are, you are attracting that. You have to change your perception. You don't have to change. You have to destroy your perception.